Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में top most. Hello and welcome everybody. Today we are going to learn a very interesting and useful topic, time and work. Have you ever wondered that if one person can finish a work in 10 days, then how many person can finish it in 5 days, or if more than one person is assigned to do the work, how many days will they take to finish it? Or if a machine can fill a tank in 6 hours, how long will 2 machines take? Basically, this topic will make you understand how time, work and the number of workers are related to each other. 3 things we'll talk: time, the work and the number of workers. Time and work problems are not only for exams, they are also useful in real life. For example, when you are planning a project or doing any household work, or if you are building something, we often calculate that how much time is needed based on how many people are working. So basic idea is, one person doing a work will take some days, then if I employ more number of persons, then it will take how many days. You should understand the basic working explanation. If more people started working together, then the time required will be less, and if the less people work, then time required to complete it will be more. So we can say that time and work, rather time and number of workers are indirectly related. More workers, less time; less workers, more time. Let us start. We have already seen some questions in direct and indirect variation. These questions will be slightly different than that. Let us begin. Understand the question, also see the approach. In previous video we have also covered one more basic. Here also again we are going to cover some basic and some tough questions. Question says A can do a piece of work in 9 days and B can do it in 18 days. A can do a piece of work in 9 days. Now here they have not given what is the work, and generally in such kind of questions, what is the work they are doing will not be given. So question says A can do a work in 9 days and B in 18 days. So you first of all, I'll write down here. And now it says if both of them work together, in how many days can they complete the work? So question says A alone can do the work in 9 days, B alone can do the work in 18 days. Then if they both are working together, they will take how many days? How should you approach the question? The approach of the question: first, find the total work. You should find that what is it that the work they are doing. Find the total work. Now how to find the total work? To find the total work, take LCM of number of days. This will give you the total work. The days are 9 and 18. Let's take the LCM of 9 and 18. Divide by 3, this is 3. This is 6. Divide by 3 again. This is 1, this is 2. Divide by 2. This is 1, this is 1. LCM is 3 into 3, 9. 9 into 2, 18. Now here in this question, actually there was no need of doing this factorization. You see, 9 and 18, they both are multiples of 9. And when you have two numbers out of which both are multiples, 9 and 18 both are multiples of 9, in such case the bigger number is the LCM. अगर आपको दो नंबर दिए हो, एक 9 एक 18,
जहां पर आप देखिए 9 और 18 दोनों 9 के मल्टीपल्स हैं, तो बड़ा नंबर आपका एलसीएम होगा. दिस विल बी द एलसीएम ऑलवेज. सपोज you have number 4 and 16. 4 and 16, they both are multiples of 4. Then the bigger number will be 16, will be the LCM of 4 and 16. Simple method. So let us now go back and understand that the total work is 18. Now the units, you can take it as 18 units. This is my total work. This is the first step. We'll find the total work. सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम ये ए और बी क्या काम कर रहे हैं, वो वर्क क्या है, उसके हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे. और न्यूमेरिकल वैल्यू लेने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे. ए के डेज हैं 9, बी के डेज हैं 18. ए और बी का हमने एलसीएम लिया, वो 18 आया. लेने की जरूरत नहीं है. 9 और 18 जब दो नंबर हो, जब दोनों ही एक नंबर के मल्टीपल हो, तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है. So now I have the LCM is 18, which is my total work. That is the first step. Now second step, find one day work of A and B. Now this is our next step. We'll find one day work of A and B. And how do we find that? We find the one day work by the formula total work upon total days. Now total work, we have just calculated total work. Let us find out the one day work of A and B. Total work here we have calculated as 18 units, and the total days which A is taking to complete this 18 unit is 9 days. So 18 divided by 9, one day work of A is 2 units. And similarly, let us find out one day work of B. One day work, again total work upon total days. Total days of B is 18 days. He is taking 18 days to complete. So in denominator I'll take total days as 18. Numerator total work is 18. 18 upon 18 is 1 unit. So it means B is doing 1 unit in 1 day. So these are the two steps. And now for the further, let us go back to the question. Now we know that A is doing the whole work in 9 days and my whole work is 18 units. This is my total work, 18 units. And A is doing these 18 units in 9 days, means he is doing 2 units in 1 day. And similarly, one day work of B we have calculated is 1 unit. So if they both work together, alone working, A is doing 2 units. अगर वो alone work करें तो A एक दिन में 2 units करता है, B एक दिन में 1 unit करता है. The question is asking what will happen if they work together. If they work together, then they will do 2 plus 1, 3 units in 1 day. If they are doing 3 units in 1 day, then to complete 18 units, they will take how many days? For 18 units, they will take how many days? Let us assume X days. We can find out the formula of number of days is total work upon 1 day work. Total work is 18 and 1 day work of A and B is 3. 18 divided by 3 is 6 days. So they will take 6 days. Actually, this formula was not required. You can actually directly do that if they are doing 3 units in 1 day. अगर 3 unit वो एक दिन में करते हैं तो 18 करने के लिए this is into 6 relation. ये into 6 का relation है. तो अगर you work का into 6 का तो days का भी into 6 का, you can directly do that, or you can straight away divide 18 and 3 also. That you will understand as you will practice more and more question. So answer here is option number B, 6 days.
Next question. A and B together can do a piece of work in 6 days. If A alone can do the same work in 18 days, in how many days B alone can complete the work? Look at the question. Slightly twisted. अब उन्होंने बताया कि A and B together एक साथ काम करें तो वर्क 6 डेज में हो जाता है. Let us write down A, let us write down B, and then let us write down A plus B. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले A कितने दिन में वर्क करता है, B कितने दिन में वर्क करता है, और A plus B एक साथ कितने दिन में वर्क करते हैं. तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या दे दिया? They have given that A and B together they are doing the work in 6 days. This is what they say. और आगे बताया that if A alone can do the same work in 18 days. अच्छा, A alone कितने दिन में काम करता है? 18 डेज में. And then they're asking that in how many days will B alone complete the work. तो अब हमें इन्होंने क्या दे दिया कि दोनों कितने दिन में काम करते हैं? 6 डेज. A alone कितने दिन में काम करता है? 18 डेज. तो B alone कितने दिन में काम करेगा? They twisted the question, but it is very simple. हम again our approach will be same. First find out the total work, then find out the one day work. So let us do the total work. अब total work में हमें LCM लेना है, तो किस किस का लेना है? A के डेज का 18 का और A और B दोनों के डेज का 6 का. इसका हम LCM लेंगे. The first step will be to find the total work. By taking the LCM of number of days. Number of days here are 6 and 18. Now no need of taking the LCM. सेपरेटली फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है. 6 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं. 6 और 18 का LCM 18 हो जाएगा. No need of doing anything. If you are having a doubt, check it. 6 and 18. Divide by 2, this is 3, this is 9. Divide by 3, this is 1, this is 2. Divide by 2, this is 1, this is 1 again. Divide by 3, this is 1, this is 3. Divided by 3 again, this is 1, this is 1. So 2 into 3 is 6, 6 into 3 is 18. So when you have two numbers and these two numbers are the multiples of a common number, जैसे यहाँ पर 6 और 18 6 के मल्टीपल है, तो you take the bigger number as the LCM. तो यहाँ पर इनका LCM 18 हो जाएगा. So this is my total work 18 and you take it as units. Now after getting the total work as 18 units, we will find the one day work. Now one day work will be total work upon total days. Total work I am writing TW, total days I am writing TD. This is total days TD, total work total TW. So let us find out the one day work of A. One day work of A will be total work is 18 units and total days of A is 18. 18 upon 18, it is 1 unit. Let us find out the one day work of A and B both. दोनों का भी हमें दिया हुआ है. One day work of A and B both. That will be again total work upon total days. Total work is 18 और A और B के total days हैं 6. तो ये हो गया 3 units. इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि A अकेले एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट वर्क करता है. A is doing 1 unit in one day and A and B together are doing 3 units in one day. दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 3 units. A and B together 3 units. A alone 1 unit. Let us now go back to the question. अब हमें यहां से ये पता चल गया कि A एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है और A और B एक दिन में 3 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं. Now you have to apply a basic logic कि एक दिन में A और B 3 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं, दोनों मिलाकर 3 यूनिट्स कर रहे हैं.
और उसमें से 1 यूनिट ए कर रहा है। अगर 1 यूनिट ए कर रहा है और दोनों मिलाकर ए और बी दोनों मिलाकर 3 कर रहे हैं, इसका मतलब बचे हुए जो 2 यूनिट्स हैं वो बी कर रहा होगा। तो यहां से हमें पता चल जाएगा दैट बी इज डूइंग 2 यूनिट। अदरवाइज यू कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, ए प्लस बी 3 यूनिट्स में से ए आप माइनस करो, आपके बी के नंबर ऑफ यूनिट्स की बी एक दिन में कितना काम करेगा वो पता चल जाएगा। सो नाउ वी नो दैट बी इज डूइंग 2 यूनिट्स इन 1 डे। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि टोटल वर्क करने में उसे कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क इज 18 यूनिट्स, सो फॉर दैट ही विल टेक हाउ मेनी डेज। लेट अस अज्यूम x डेज। अब आप यहां पर सॉल्व कर लो, 2 और 18 का आप रिलेशन निकाल लो, इंटू 9 का रिलेशन होता है, तो 1 और x का भी रिलेशन इंटू 9 का रिलेशन। और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क upon 1 day work. That will again give you the same thing, 18 upon 2, which is 9 days. Answer is option number B. Next question. A, B and C alone can do a work in 4 days, 6 days and 8 days respectively. Find the time in which all 3 together can complete the work. Now this is the exam question जहां पर 3 लोगों की बात चल रही है, A, B एंड C. A अलोन एक दिन वर्क को कंप्लीट करने के लिए 4 डेज लेता है, B अलोन वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6 डेज लेता है, एंड C अलोन टेक 8 डेज टू कंप्लीट द वर्क. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर तीनों एक साथ काम करने लगे, A, B और C अगर एक साथ काम करने लगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे. अगेन अप्रोच रिमेन्स द सेम. सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ए 4 डेज में तो वर्क कंप्लीट करता है, एक दिन में वो कितना वर्क कर रहा है. बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, और सी एक दिन में 1 डे में कितना वर्क कर रहा है. हमें टोटल दिया हुआ है कि टोटल वर्क के लिए उन्हें 4 डेज लगते हैं, तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि उनका 1 डे वर्क क्या है. एंड फॉर फाइंडिंग द 1 डे वर्क सबसे पहले हम निकालेंगे व्हाट इज द टोटल वर्क. सो लेट अस फाइंड आउट द टोटल वर्क यूजिंग द LCM of days. Total work will be the LCM of days, which is 4, 6 and 8. ना अगर आपके पास टेबल आपने सामने रखा हुआ है 4, 6 and 8, 4 के टेबल में भी आता है 24, 6 के टेबल में भी आता है 24 और 8 के टेबल में भी आता है 24. तो ये इनका LCM हो गया. If you have the tables you can clearly see. If not, इफ यू आर एट अ फेज की हाँ हमें डिवाइड करके निकालना है, यू वांट टू गो बाय कॉमन फैक्टराइजेशन, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. 3 is a prime number, leave it as it is. Divide by 2 1s are 2, 3 as it is, 2 2s are 4. 2 and 3 are prime numbers. इनको आप यहीं छोड़ दो, आगे और फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है. My LCM will be 2 into 2 into 3 into 2. This is 2 into 2 into 3 into 2. 2 into 2 is 4 into 3 is 12. 12 into 2 is 24. One more approach what you can do is actually 4 क्या होता है, 4 is 2 into 2. We can call it 2 power 2. 6 is 2 into 3. We call it 2 power 1 into 3 power 1. And 8 is 2 cube. 2 into 2 into 2. Which is 2 cube. तो यहाँ से आप देख सकते हैं different factors are 2 and 3. Highest power of 2 is 3. Highest power of 3 is 1. 2 power 3 is 8. 8 into 3. ऐसे भी आप whatever way you have, you please go through the LCM. It's a video. We have covered everything there. Please go through them. Solve all the questions. We have covered almost 100 questions in that. So we have got the total work as 24 units. Now after we have got the total work, let us find out the 1 day work of each. सभी का 1 day work अब हम निकालेंगे. टोटल वर्क निकालने के बाद 1 day वर्क हम निकालेंगे. 1 day वर्क सबसे पहले A का 1 day वर्क होगा. टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज. सबसे पहले हम निकालेंगे 1 day वर्क ऑफ A विच इज टोटल वर्क. टोटल वर्क हमने 24 निकाला और A का डेज 4 है, सो A इज डूइंग 6 यूनिट्स इन 1 day. 1 day वर्क हम B हम निकालेंगे. टोटल वर्क 24 है और B के टोटल डेज 6 है, so 624 divided by 6 is 4 units. And then let's find out the 1 day work of C, which is total work is 24 and C के total days 8 हैं, so this is 3 units. Now we got
the one day work of all these three, 6, 4 and 3. Let's now go back to the question. अब हमें ये पता चल गया कि A एक दिन में 6 यूनिट्स वर्क करता है, B एक दिन में 4 यूनिट्स वर्क करता है और C एक दिन में 3 यूनिट्स वर्क करता है. तो अगर तीनों एक साथ काम करें, if they all work together, then they will do 6 plus 4 10 plus 3 13 units in one day. So now they are doing 13 units in one day. If they are doing 13 units in one day, total work is 24. तो 24 units they will take how many days? सिंपल अप्रोच है, आप यहां से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर यू कैन यूज द फॉर्मूला टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क. टोटल वर्क 24 है, वन डे वर्क 13 है. 24 upon 13, they have converted it into mixed fraction. Let us also convert 24 upon 13 into mixed fraction. This is 1 whole 11 upon 13. Those having a confusion of 24 upon 13 as a mixed fraction, divide them. This is 13 ones are 13. This is 1, this is 1. So 11 is my remainder, that is my numerator. 1 is my quotient, that is my whole number. 13 is the divisor, that is the denominator. 1 whole 11 by 13, answer is option number C. Question says Abhay can do a piece of work alone in 4 days. Bhanu can do the same work alone in 6 days. If Abhay, Bhanu and Chetan together can complete the work in 2 days, then find the number of days Chetan working all alone will take to do the same work. क्वेश्चन में बताया है कि अभय वर्क को कंप्लीट करने के लिए 4 डेज लेता है, भानु वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6 डेज लेता है, एक तीसरा पर्सन चेतन भी है, उसके कितने डेज हैं ये हमें नहीं बताया हुआ, पर इन्होंने बताया कि अगर अभय, भानु और चेतन मीन्स A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ काम करें तो इन्हें वर्क को कंप्लीट करने के लिए 2 डेज लगते हैं. तो इन्होंने पूछा है कि ये बताओ कि चेतन को उस वर्क को कंप्लीट करने में अलोन, अकेला कितना टाइम लगेगा. अप्रोच रिमेन्स द सेम. सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, डेज का एलसीएम लेंगे 4, 6 और 2. LCM of 4, 6 and 2, तीनों के टेबल में 12 आता है. 4 3 are 12, 6 2 are 12, 2 6 are 12. सो इनका LCM हो जाएगा 12 और हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 12 यूनिट्स. अब अगर हमारा टोटल वर्क 12 यूनिट्स है तो हम सबसे पहले अभय का वन डे वर्क निकालेंगे, भानु का वन डे वर्क निकालेंगे और अभय, भानु प्लस चेतन का वन डे वर्क निकालेंगे. वन डे वर्क ऑफ अभय, वन डे वर्क इज टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज. टोटल वर्क इज 12 यूनिट्स और अभय के टोटल डेज हैं 4 डेज. सो 12 अपॉन 4, अभय करता है एक दिन में 3 यूनिट्स. सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ भानु, वन डे वर्क ऑफ भानु टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, टोटल वर्क 12 है, भानु के टोटल डेज 6 हैं. सो 12 अपॉन 6 विल बी 2 यूनिट्स. इसका मतलब भानु एक दिन में 2 यूनिट्स करता है. सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ अभय प्लस भानु प्लस चेतन विल बी टोटल वर्क 12 अपॉन तीनों के टोटल डेज 2 हैं. इसका मतलब तीनों एक दिन में 6 यूनिट्स करते हैं. अब हमारा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा. अभय 3 यूनिट, भानु 2 यूनिट और तीनों मिलाकर 6 यूनिट. लेट अस राइट डाउन हियर. यहां पर आपसे लिखो, क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया.
अब है एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट्स, भानु एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट्स, चेतन का हमें डेज नहीं पता तो यूनिट भी नहीं पता, लेकिन तीनों मिलाकर एक दिन में कर रहे हैं 6 यूनिट्स। तो अब आप यहां से सोचिए कि टोटल तीनों मिलाकर अभय, भानु और चेतन तीनों मिलाकर 6 यूनिट्स वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। ऑल 3 आर डूइंग 6 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 1 डे। अच्छा, इन 6 यूनिट्स में से अभय 3 करता है, भानु 2 करता है, इसका मतलब बचा कितना, 3 + 2 हो गया 5। इसका मतलब अभय और भानु 5 यूनिट्स कर रहे हैं और तीनों मिलाकर 6 कर रहे हैं। इसका मतलब एक जो रिमेनिंग यूनिट है वो कौन कर रहा है, वो चेतन कर रहा है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट चेतन इज डूइंग 1 यूनिट। कितने दिन की बात है, 1 डे। सो इफ चेतन इज डूइंग 1 यूनिट इन 1 डे, तो टोटल वर्क है यहां पर 12 यूनिट। अगर एक यूनिट वो एक दिन में कर रहा है तो 12 यूनिट करने के लिए उसे सिंपल 12 डेज लगेंगे। डायरेक्ट है, इसमें तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक यूनिट एक दिन में तो 12 यूनिट 12 दिन में। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सेज A can do a piece of work in 10 days which B can do in 15 days. If A worked at it for 8 days, in how many days can B finish the remaining work? Understand the question. इन्होंने बताया कि एक पीस ऑफ वर्क है, उसे ए 15 डेज में खत्म करता है, उसी वर्क को ए 10 डेज में खत्म करता है, उसी वर्क को बी 15 डेज में खत्म करता है, and then the question says that if A worked at it for 8 days, मतलब A ने इस पर 8 डेज तक काम कर लिया, then in how many days can B finish the remaining work? अगर A इस पर ऑलरेडी 8 डेज तक काम कर चुका है तो बचे हुए वर्क को B कितने दिन में खत्म करेगा? तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि B बचे हुए वर्क को कितने दिन में खत्म करेगा। तो पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि बचा हुआ वर्क कितना है। So now to find out that what is the remaining work, we should first find out कि 8 डेज में वर्क A ने कितना कर दिया है और जो उसने कंप्लीट कर दिया उसमें से टोटल वर्क अगर हम दोनों का डिफरेंस ले ले तो हमें रिमेनिंग वर्क मिलेगा। Now what do I mean? Let us start this question. Now we know that A can do the work in 10 days and B can do it in 15 days. My first step is to find out the total work by taking the LCM of 10 and 15. So let us find out the total work. Total work will be calculated by LCM of 10 and 15. Now LCM of 10 and 15 are simple. 10 3s are 30 and 15 2s are 30. So common multiple of 10 and 15 both is 30. So LCM of 10 and 15 is 30. If not, then you can go by factorization method also. Factors of 10 will be 2 into 5. Factors of 15 are 3 into 5. दोनों में अलग अलग फैक्टर्स हो गए 2 into 3 into 5. सभी की पावर 1 है तो आप स्ट्रेट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 into 3 6 into 5 30. So whatever way you are comfortable, हमने टोटल वर्क यहाँ पर LCM 30 निकाला. So total work is 30 units. Now if the total work is 30 units, then the question says कि A ने 8 डेज तक काम कर लिया है. अच्छा, A ने अगर 8 डेज तक काम कर लिया तो उसने 8 डेज तक तो वर्क किया है, पर उसने कितने आउट ऑफ दिस 30 यूनिट उसने कितने यूनिट कर दिए हैं? लेट अस फाइंड आउट. एंड हाउ डू वी फाइंड दिस? बाय फाइंडिंग द वन डे वर्क ऑफ A एंड B बोथ. टोटल वर्क इज 30 यूनिट. लेट अस फाइंड आउट द वन डे वर्क ऑफ A एंड वन डे वर्क ऑफ B. वन डे वर्क ऑफ A. Now one day work of A will be given by the formula total work, which is 30 units upon total days. A के total days question में 10 दिए हुए.
30/10 इज 3 यूनिट्स। इसका मतलब एक दिन में ए 3 यूनिट्स करेगा। लेट अस ऑल्सो फाइंड आउट द वन डे वर्क ऑफ बी की बी एक दिन में कितना वर्क करता है। वन डे वर्क ऑफ बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला टोटल वर्क 30 अपॉन बी के टोटल डेज 15 है। 30/15 is 15 2s are 30, so this is 2 units is what B is doing. Now let's go back to the question. Now we know that A is doing 3 units in one day. A एक दिन में 3 units work करता है और B एक दिन में 2 units work करता है। अब हमने इनके वर्क को यूनिट्स में निकाल लिया। A एक दिन में 3 units कर रहा है, B एक दिन में 2 units कर रहा है। नाउ लेट अस गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि ए ने 8 दिन तक काम किया। अगर ए ने 8 दिन तक काम किया, इफ ए हैज वर्कड फॉर 8 days, देन ही इज डूइंग 3 यूनिट्स इन वन डे। सो इन 8 days ही विल डू हाउ मेनी यूनिट्स? 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 24 यूनिट्स। वेरी सिंपल। ये एक दिन में ए 3 यूनिट्स वर्क करता है। एक दिन में अगर 3 यूनिट करता है तो 8 दिनों में वो कितना करेगा? एवरी डे का 3, तो 8 इंटू 3 24 यूनिट्स वर्क ए करेगा। हमें निकालना है कि बी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? लेट अस फाइंड आउट। रिमेनिंग वर्क इज गिवन बाय टोटल वर्क विच इज 30 यूनिट्स माइनस वर्क डन बाय ए ने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया है? 24 यूनिट्स कंप्लीट कर। तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 30 माइनस 24, 6 यूनिट्स। दिस इज द रिमेनिंग वर्क। और अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में 2 यूनिट्स करता है, 2 यूनिट्स इन वन डे। If B is doing 2 units in one day, so for 6 units he will take how many days? Simple, 3 days. Logical है भाई, 2 यूनिट एक दिन में, तो 6 यूनिट्स के लिए ये इंटू 3 रिलेशन है, इधर भी इंटू 3 रिलेशन होगा। आंसर विल बी 3 days। या फिर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क करके 6/2 कर दीजिए, उससे भी आपका आंसर 3 days आएगा। Answer is option number B. Next question says A can do a piece of work in 15 days while B can do it in 10 days. They began the work together but A leaves after 3 days. In how many days will B finish the remaining work? Question में बताया है कि एक certain work है, उसको करने के लिए A को 15 days लगते हैं, बी को 10 days लगते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर, मतलब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, पर बट ए लीव्स आफ्टर 3 days, मतलब ए 3 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। 3 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया, इसका मतलब यह है कि पहले 3 दिनों तक ए और बी एक साथ काम कर रहे थे, उसके बाद ए चला गया, बी अकेला रह गया। तो हमें ये बताना है इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अगेन सबसे पहला आपका जो अप्रोच होगा वो टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क हम डेज 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, जो कि अभी हमने किया है, तो वो 30 आया था, तो हमारा टोटल वर्क जो है वो यहां पर 30 यूनिट्स होगा। नाउ टोटल वर्क 30 यूनिट्स होगा, तो अब आपको इतना समझ में आ गया है कि हमें वन डे वर्क निकालना है। ए का वन डे वर्क होगा 30/15, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, तो वो आ गया 2 यूनिट्स। इसका मतलब ए एक दिन में करता है 2 यूनिट्स, और बी का वन डे वर्क होगा टोटल वर्क 30 अपॉन टोटल डेज 10, वो आ गया 3 यूनिट्स। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट करता है। अब हम यहां से जो क्वेश्चन की जो ट्विस्टिंग है उसको देखते हैं। कह रहा है दे बिगेन द वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो ए और बी अगर एक साथ काम करने लगे तो ए करेगा 2 यूनिट्स और बी करेगा 3, तो दोनों मिलाकर एक दिन में अब करेंगे 5 यूनिट्स।
तो अगर एक साथ काम शुरू करें तो एक दिन में वो 5 यूनिट्स करेंगे, और ऐसे उन्होंने 3 दिनों तक काम किया। कैसे पता चला 3 दिन? क्योंकि ए लीव्स आफ्टर 3 डेज, मतलब ए 3 दिन के बाद गया। ए अगर 3 दिन के बाद गया, इसका मतलब पहले 3 दिन तक दोनों साथ में काम कर रहे थे। अच्छा, ये लोग एक दिन में दोनों मिलाकर 5 यूनिट्स करते हैं। वन डे दे डू 5 यूनिट्स। इफ वन डे दे आर डूइंग 5 यूनिट्स, सो दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज। तो 3 डेज में ये कितना कर लेंगे? एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 3 डेज में ये करेंगे 5 इंटू 3 15 यूनिट्स। तो इनके 15 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। कितने दिनों में? 3 दिन में इन्होंने 15 यूनिट्स कर दिया। बाय द रेट ऑफ 5 यूनिट्स पर डे करते हैं, तो 3 डेज में 15 यूनिट्स इन्होंने कंप्लीट कर दिया। एंड नाउ अब ए चला जाएगा, ए लीव्स। अब ए चला गया तो बचा कौन? बी रिमेनिंग। तो अब जो वर्क करने वाला बचा है वो सिर्फ बी बचा है। अच्छा, ए जो चला गया, दोनों ने मिलाकर 15 यूनिट्स कर भी दिए थे। टोटल वर्क यहां पर 30 यूनिट्स है। टोटल वर्क इज 30 यूनिट। उसमें से वर्क डन कितना कर दिया इन्होंने? 15 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क बचा 30 माइनस 15, 15 यूनिट्स। ए और बी ने पहले 3 दिन में 15 यूनिट्स कर दिया। टोटल 30 था, 30 में से 15 कर दिया तो बचा 15। अच्छा, ये करके अब ए जा चुका है, अब बचा है बी। तो ये जो रिमेनिंग वर्क 15 यूनिट्स है, इसे बी करेगा क्योंकि ए तो जा चुका है। और बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी ये है कि वो 3 यूनिट करता है एक दिन में। सो इन वन डे बी इज डूइंग 3 यूनिट्स। भाई एक दिन में वो 3 यूनिट करता है, तो 15 यूनिट के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? सिंपल है, 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर लॉजिकली भी आप निकाल सकते हैं, एक दिन में 3 कर रहा है या 3 यूनिट एक दिन में होता है, तो 15 यूनिट कितने में होगा? ये इंटू 5 का 3 यूनिट और 15 का इंटू 5 का रिलेशन है, तो 1 और x का भी इंटू 5 का आप रिलेशन कर दो, या आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप फॉर्मूला से कर लो। नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क 15/3 करके आपका आंसर 5 आ जाएगा। कोई भी मेथड आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 डेज। Uma can finish a work in 18 days. The same work is finished by Manju in 9 days. In how many days both of them will finish the work while working together? Question में बताया है that Uma can do the work in 18 days. Manju can do the work in 9 days. तो इन्होंने बोला है कि अगर दोनों एक साथ, उमा प्लस मंजू एक साथ काम करें तो डेज कितने लगेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे विच इज द एलसीएम ऑफ डेज। 18 और 9 का एलसीएम हमने पहले भी डिस्कस किया, 18 होगा बिकॉज 18 इज मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 18। 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, तो हमारा टोटल वर्क 18 आ गया। और अब हम निकालेंगे यूजिंग द टोटल वर्क, वी विल फाइंड आउट द वन डे वर्क ऑफ ए उमा एंड मंजू। उमा का वन डे वर्क होगा टोटल वर्क 18 अपॉन टोटल डेज 18, 18 अपॉन 18 1 यूनिट। इसका मतलब उमा एक दिन में 1 यूनिट करती है। लेट अस फाइंड आउट द वन डे वर्क ऑफ मंजू। टोटल वर्क 18 अपॉन टोटल डेज 9, 18 upon 9 is 2 unit, means Manju is doing 2 unit in one day. दोनों का पूछा है, Uma is doing 1 unit, Manju is doing 2 unit, means together they are doing 3 unit in one day. तो दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो one day they are doing 3 unit. टोटल वर्क कितना करना है उन्हें? 18। तो अगर एक दिन में वो 3 यूनिट करते हैं तो 18 यूनिट्स के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क, 18/3 कर लीजिए। नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क अपॉन टोटल वन डे वर्क।
टोटल वर्क 18 और दोनों का टोटल वन डे वर्क है 3, 18/3 आंसर इज 6 डेज। तो पूरा करने के लिए ना 6 डेज लगेगा, या फिर 3 और 18 का इंटू 6 का रिलेशन है तो 1 और x का भी इंटू 6 का, ऐसे भी आपका आंसर 6 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। Question says, Asha can finish a work in 15 days. The same work is finished by Nirmala in 12 days. In how many days both of them will finish the same work while working together? Question में बताया that आशा एक वर्क को 15 डेज में करती है और निर्मला उसी वर्क को 12 डेज में करती है। क्वेश्चन में पूछा है अगर दोनों एक साथ काम करें तो ये वर्क कितने दिन में खत्म होगा। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क विल बी LCM ऑफ 15 and 12. Let us find out the LCM of 15 and 12. Total work will be given by, total work हम निकालेंगे by LCM of days। जो हमें आशा और निर्मला के डेज दिए हैं उन दोनों का हम LCM ले लेंगे। आशा के डेज दिए हैं 15 and 12। 15 और 12 का अगर आपको LCM निकालना है तो पहला तो आप दोनों का टेबल आप देखो तो 15 4 60 एंड 12 5 60, तो ये दोनों के टेबल में आता है 60, तो ये इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टेबल पर कमांड चाहिए। अच्छा, टेबल पर अगर कमांड नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हैं। 12 और 15 दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे 3 से। बोथ आर डिविजिबल बाय 3, लेट्स डिवाइड देम बाय 3। ये हो गया 3 4 12, 3 5 15। 5 प्राइम नंबर है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। 4 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 4 और 5 एज इट इज छोड़ देंगे। 2 और 5 प्राइम नंबर है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये नंबर्स एलसीएम है। 3 into 2 into 2 into 5। दिस इज 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5। 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 12, 12 into 5 is 60। तो हमारा एलसीएम वापस से 60 आ रहा है, और जो हमारा एलसीएम आ रहा है वही हमारा टोटल वर्क है। अवर टोटल वर्क TW, total work is 60 units। Let's go back. Total work will be given by LCM days 15 and 12, that is 60 units। अब हम निकालेंगे वन डे वर्क ऑफ आशा एंड वन डे वर्क ऑफ निर्मला। Now after finding the total work, let us find out the one day work of Asha and Nirmala. One day work of Asha will be given by the formula total work upon total days। Now in the question we have calculated the total work as the LCM. Total days of Asha is 15, so total work is 60, total days of Asha is 15। 60 divided by 15 is 4 units। इसका मतलब Asha is doing 4 units in one day। Similarly, let us find out one day work of Nirmala। One day work of Nirmala is given by the formula total work TW upon total days TD। Total work is 60, total days of Nirmala is 12। 60 divided by 12, we know 12 5 are 60, it means Nirmala is doing 5 units in one day। तो अभी हमने दोनों के वन डे वर्क निकाल लिया, आशा का 4 यूनिट, निर्मला का 5 यूनिट्स। Now that we have calculated the one day work of Asha, which is 4 units, and the one day work of Nirmala, which is 5 units, so question is asking how many days they will take to complete the work together। तो अगर आशा और निर्मला एक साथ काम करने लगे तो आशा 4 यूनिट्स करेगी और निर्मला 5 यूनिट्स, मतलब दोनों मिलाकर करेंगे 4 + 5 9 यूनिट्स।
और ये 9 यूनिट्स ये लोग करेंगे एक दिन में. सो दे विल डू 9 यूनिट्स इन 1 डे. अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में वो करेंगे 9 यूनिट्स. अच्छा, अगर एक दिन में वो करेंगे 9 यूनिट्स तो उन्हें टोटल वर्क करना है. टोटल वर्क क्या है? 60 यूनिट्स. तो 60 यूनिट्स के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? x डेज लगेंगे. तो x को कैसे निकालना है? आप या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप डेज का फॉर्मूला लगा लो. नंबर ऑफ डेज इज गिवन बाय द फॉर्मूला. हमें डेज निकालने की, टोटल डेज कितने लगेंगे? तो दैट इज टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क. टोटल वर्क है 60, 1 डे वर्क है 9. 60 को 9 से डिवाइड करेंगे. 60 और 9 दोनों 3 से सिंप्लीफाई कर लो आप. ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3. 20 अपॉन 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे 6 होल 2 अपॉन 3 होता है. फॉर दोज हु हैव अ प्रॉब्लम इन 20 अपॉन 3, इधर देख लीजिए 20 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 3, 6 जा 18, माइनस करेंगे रिमाइंडर 2 आ गया. रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, कोशेंट हमारा होल नंबर बन जाएगा. आंसर इज 6 होल 2 अपॉन 3. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए.